Hello students, in the last video we have discussed the NMR topic, that is for the different protons how we'll get different signals in the NMR. I have given few problems to solve at the end of that video. Firstly we will discuss those problems. The first compound is ethanol. In this case we have three different type of hydrogens, so we will get three signals. The next compound is propanaldehyde. Again in this case we have three different type of hydrogen, again we will get three signals. Next example is acetone. In acetone we have these two set of hydrogen, or you can say these two methyl groups are equivalent, so in this case we will get one signal. Next example we have 1,1-dimethyl cyclopropane. If you closely see the environment of these two methyl groups have exactly same environment, so they will get one signal. Then if you see these hydrogen, the environment of these four hydrogen is exactly same, so we will get two signals for this hydrogen. Total two signals in this compound, one signal for this hydrogen and one signal for these methyl hydrogens. Next we have example of 1,2-trans-dimethyl cyclopropane. In this case we will get three signals. These two hydrogens are equivalent, so we will get one signal here. These methyl groups are equivalent, we will get the second signal. For these hydrogen we will get the third signals. Next compound we have 1,4-dimethyl, or you can say para-dimethyl benzene. In this case these four aromatic hydrogen are equivalent, we will get one signal for these hydrogen. These two methyl groups are equivalent, we will get one signal. So total in the compound we will get two signal. Next example we have ethyl benzene. In this case we will get three signals. One is for this methyl hydrogen, second is for methylene hydrogen, and third is for these five aromatic hydrogen. Later we will also study these five hydrogens of aromatic ring are also different, two ortho, two meta and one para. Till we get these three signals only here. When we have detailed discussion of NMR, we will discuss how these hydrogen are different and give different signals. Next information we will get from the NMR is position of signals. After getting how many type of protons we have in the compound, next we get the information where we get the chemical shift of that protons, or you can say we came to know the nature of the protons or their surrounding environment, whether electron donating or withdrawing groups are present adjacent to protons. How this happens? When we place a proton in a magnetic field, when we place any compound in the magnetic field, protons being charged particles, when they spin they produce magnetic field. That's why we get NMR signals. Similar to protons, we have electrons in the molecule. In electrons we have also charge. When these charged particles spins, they also act as magnet. They produce a secondary magnetic field. This secondary magnetic field may align or oppose the applied magnetic field of the proton. When secondary field produced by the electrons, because of the circulation of the electrons, if we have sigma electrons, that secondary magnetic field oppose the applied magnetic field. But when we have pi electrons in the molecule, secondary magnetic field produced by the circulation of pi electrons may oppose or align the magnetic field.
In case of benzene, this is benzene molecule. Here the orientation of protons in such a way that these secondary magnetic field produced by the proton is in this direction and applied magnetic field is also in the same direction. That means secondary magnetic field aligns the applied magnetic field. Net magnetic field increases. In case of alkyne, we have C triple bond C. The orientation of this alkyne is in such a way that secondary magnetic field produced by these alkyne protons opposes the applied magnetic field. So net magnetic field decreases. In case of alkenes, it is C double bond C, we have situation similar to benzene. In this case, secondary magnetic field produced by the electrons aligns the applied magnetic field. Net magnetic field increases. Now we have discussed the different situation of pi electrons where secondary magnetic field opposes or align. If induced or secondary magnetic field oppose the magnetic field, what happen? Suppose applied field मेरा इस डायरेक्शन में है, इंड्यूस्ड और सेकेंडरी फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. नेट वैल्यू दोनों अपोजिंग फैक्टर है. नेट वैल्यू मेरी एक्चुअल फील्ड की डिक्रीज हो रही है प्रोटॉन पे. अगर मेरी नेट वैल्यू ऑफ एक्चुअल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सपीरियंस करे वो प्रोटॉन डिक्रीज हो रही है, तो मेरे पास मुझे ज़्यादा अप्लाइड फील्ड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है. अगर मेरा अप्लाइड फील्ड ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास जो सिग्नल्स हैं वो अप फील्ड आएंगे और मेरा उस केस में प्रोटॉन शील्डेड आ जाता है. क्लियर? सिमिलरली इसका ऑपोजिट मेरे पास क्या केस है? अगर मेरा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड को अलाइन कर रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है, उस केस में मेरे प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग हो जाती है. अब मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो मेरे पास जो सिग्नल्स हैं लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाएंगे. लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे मतलब मेरे पास डाउन फील्ड आ गई. और आप क्या कह सकते हो, जब मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेरा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है हमेशा अपोज करता है. अपोज कर रहा है मेरे प्रोटॉन्स, उनको मैं कह दूँगी शील्डेड हो गए और वो हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप फील्ड वैल्यू पे आते हैं. जब मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी किसके? बेंजीन रिंग के, सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम के, दैट इज़ एल्कीन्स के. उस केस में मेरा जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है वो अलाइन करते हैं अप्लाइड फील्ड को. मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी और मेरे जो सिग्नल्स हैं लो वैल्यू दैट इज़ डाउन फील्ड आ जाते हैं. अब हम मैग्नेटिक लो एंड हाई वैल्यू डाउन फील्ड या फील्ड वैल्यू कैसे देखते हैं? सपोज मेरे पास ये मैग्नेटिक सिग्नल्स आ रहे हैं एनएमआर में, यहाँ पे मेरे पास इंटेंसिटी है उन सिग्नल्स की, यहाँ पे मेरे पास डेल्टा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की जो H0 ज़ीरो है, दैट इज़ लो मैग्नेटिक फील्ड. ये मेरे पास हाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया. और मैं क्या कह सकती हूँ, ये मेरे पास जब लो मैग्नेटिक फील्ड है डाउन फील्ड सिग्नल है, हाई मैग्नेटिक फील्ड है मेरा अप फील्ड सिग्नल है. और मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा जो प्रोटॉन है उसमें डी शील्डिंग हुई है, यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन की शील्डिंग हुई है. अब मेरे सिग्नल्स ये हमें पता चल गया डी शील्डेड होंगे या शील्डेड होंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स. या पाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में ओरिएंटेशन मेरे मॉलिक्यूल की कैसी है. एक बार अगर हम समराइज़ करें, मेरे पास इंड्यूस्ड फील्ड है जो कि सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है हमारा बिकॉज ऑफ
सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और मैं क्या कह सकती हूँ, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेरा इंड्यूस्ड फील्ड अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, अप्लाइड फील्ड को, तो मेरे पास एक्चुअल फील्ड जो एक्सपीरियंस करे प्रोटॉन डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर मेरा एक्चुअल फील्ड डिक्रीज़ हो गया, मुझे मोर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर है उस सिग्नल को देखने के लिए, अपीयर करने के लिए, मेरा उस केस में शील्डिंग हो गई और मेरे पास सिग्नल अप फील्ड आ गए। इसका ऑपोजिट केस, अगर मेरा इंड्यूस्ड फील्ड अलाइन कर रहा है, एक्चुअल फील्ड मेरा इंक्रीज़ कर देता है, एक्चुअल फील्ड इंक्रीज़ कर गया तो मुझे लेस मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर है उस सिग्नल्स को देखने के लिए, वो सिग्नल अपीयर होने के लिए, और मेरी डी शील्डिंग हो गई है। अगर मेरी डी शील्डिंग हो गई है तो मेरे पास डाउन फील्ड सिग्नल आ जाएंगे। डाउन फील्ड सिग्नल्स मेरे लो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पे आ रहे हैं, अप फील्ड सिग्नल्स मेरे हाई वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पे आ रहे हैं। अभी हमने पीछे 2-3 एग्जांपल्स करी। बेंजीन और एल्कीन के केस में डाउन फील्ड सिग्नल आएंगे, एल्कीन एसिटिलीन के केस में, एल्कीन में मेरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एसिटिलीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन ऐसी है जिस वजह से मुझे अप फील्ड सिग्नल्स अपीयर होंगे, अप फील्ड सिग्नल दिखेंगे। अभी हमें ये तो पता चल गया कि मेरा सिग्नल डाउन फील्ड हो रहा है या अप फील्ड हो रहा है। कितना अप फील्ड हो रहा है, कितना डाउन फील्ड हो रहा है, उसे देखने के लिए वी नीड सम रेफरेंस कि इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर वैल्यू के विद रिस्पेक्ट मेरा सिग्नल कितने टाइम्स, कितने एक्सटेंट तक, कितना डेल्टा वैल्यू अप फील्ड गया या डाउन फील्ड गया। तो जो एनएमआर के सिग्नल्स हम देखते हैं स्पेक्ट्रम में, वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल शिफ्ट देखते हैं। केमिकल शिफ्ट क्या है, शिफ्टिंग है जो हमारे केमिकल सिग्नल्स है, शिफ्टिंग है हमारे प्रोटॉन्स की, कहाँ पे, एनएमआर में। कब, जब मेरे पास डी शील्डिंग और शील्डिंग होती है। शील्डिंग डी शील्डिंग कब होती है, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। दैट इज केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या होगी, शिफ्टिंग इन द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन सिग्नल्स ड्यू टू शील्डिंग और डी शील्डिंग इन एनी केमिकल बॉन्ड और इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। कितने, अब हमारे पास ये आ गया कि सिग्नल्स में शील्डिंग डी शील्डिंग होगी, उसे एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम उसे क्वांटिटेटिव मेज़र कर रहे हैं तो हमें एक रेफरेंस चाहिए, विद रिस्पेक्ट हम उसके देखते हैं कि मेरा सिग्नल कितने एक्सटेंट तक डाउन फील्ड या अप फील्ड हुआ। उस स्टैंडर्ड को हम, उस रेफरेंस को जो हमें स्टैंडर्ड सिग्नल देता है, वो हम चूज़ करते हैं ऐसा जो हमारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट ना करे, कंपाउंड के स्पेक्ट्रम के साथ इंटरफेयर ना करे, हमारे जो सॉल्व कंपाउंड से इजीली रिमूव हो जाए और हमें एक शार्प पीक दे दे, क्लियर हो जाए कि हमारा वो पर्टिकुलर रेफरेंस का ये सिग्नल है, उसके विद रिस्पेक्ट हमारे कंपाउंड्स के ये पर्टिकुलर सिग्नल्स आ रहे हैं। तो जो हम रेफरेंस कंपाउंड या स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। सिलाइल ग्रुप है, सिलिकॉन है, उस पर 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारे पास कंपाउंड हो गया टेट्रा मिथाइल सिलेन। अब हमारे पास टेट्रा मिथाइल सिलेन क्यों यूज़ होता है, अभी हमने डिस्कस करा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बिकॉज हमारे पास 12 हाइड्रोजन होगी, 4 मिथाइल ग्रुप है, तो स्मॉल क्वांटिटी TMS की हमें एक शार्प सिग्नल दे देती है, सिंगल पीक देते है, सिंगल सिग्नल देता है। देन उसके बाद हमारे पास है सिलिकॉन एज कम्पेयर टू कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स कोई भी हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच्ड है वो हमेशा डाउन फील्ड आएगी, क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज़्यादा है सिलिकॉन के कंपैरिजन में। कार्बन वाले प्रोटॉन की डी शील्डिंग ज़्यादा हो गई, अगर डी शील्डिंग ज़्यादा हो गई तो मेरे पास सिग्नल्स कार्बन वाले
कोई भी कार्बन कंपाउंड के सिग्नल्स वो ज़्यादा डाउन फील्ड आएंगे, सिलिकॉन वाले हमेशा अप फील्ड रहेंगे। और सिलिकॉन की वैल्यू हम सेट कर देते हैं 0 पे। देन है सिलिकॉन अनर्ट सॉल्वेंट है, मेरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि एक नया और कंपाउंड बन जाए, हम जिस कंपाउंड को करेक्टराइज करें करेक्टराइज ना कर पाए। नेक्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। लो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जब हमने एनएमआर कंपाउंड का स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, हमने टीएमएस को कंपाउंड के सोल्यूशन में ऐड कर लिया, जब हमारा एनएमआर हो गया उसे हमें हल्का सा वार्म करा तो हम, या रूम टेम्परेचर पे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है नियरली 30 डिग्री के आसपास होता है। रूम टेम्परेचर पे वो हमारे मिक्सचर से निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है जब भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं, जो मेरा टीएमएस है वो भी मिक्सिबल होता है। दैट मीन्स मेरे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है जिससे मैं उसका एनएमआर इजीली देख सकती हूँ, करेक्टराइज कर सकती हूँ। अब हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा कि हमारे पास जो शिफ्ट है प्रोटॉन्स की, वो शिफ्टिंग हो रही है बिकॉज ऑफ डिशील्डिंग और शील्डिंग की वजह से। शील्डिंग डिशील्डिंग कब होती है? सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। अब हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, अगर हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में करे, जो हमारे पास एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है 60 मेगाहर्ट्ज़ का भी आता है, 100 का भी आता है, 200 का भी आता है, सब हमें डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मेरे पास 60 मेगाहर्ट्ज़ की एनएमआर है तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी केमिकल शिफ्ट लो वैल्यू पे आएगी, डिफरेंट वैल्यू पे आएगी। अगर मैं 100 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ कर रही हूँ मेरे पास वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर मुझे कंपेयर करना है दो डिफरेंट एनएमआर स्पेक्ट्रम को, एक मैंने 60 मेगाहर्ट्ज़ पे स्टडी करा, दूसरा 100 पे, तो मेरे पास केमिकल शिफ्ट अलग अलग वैल्यू पे आएगी, हमारे लिए कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो जो हम फ्रीक्वेंसी है, इंस्टेड ऑफ हर्ट्ज़ हम पीपीएम में लेते हैं। पीपीएम में जब हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, वो हमारी इंडिपेंडेंट हो जाती है वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, अप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी की। फिर चाहे मेरे पास 60 मेगाहर्ट्ज़ का एनएमआर हो, चाहे 100 का हो, चाहे 400 मेगाहर्ट्ज़ का एनएमआर हो, तो जो मेरी केमिकल शिफ्ट है सब केस में एक वैल्यू आ जाएगी। सो दैट चाहे मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी वाले एनएमआर इंस्ट्रूमेंट से अपने कंपाउंड को स्टडी करूँ, मेरे पास हमेशा केमिकल शिफ्ट एक वैल्यू आ जाएगी। अब केमिकल शिफ्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का? एक तो जो मेरे कंपाउंड के ऑब्जर्व कर रही हूँ, दूसरा जो मैं रेफरेंस चूज़ कर रही हूँ। जो हमारी केमिकल शिफ्ट है, डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी एंड रेफरेंस कंपाउंड। और केमिकल शिफ्ट को हम कैसे देखते हैं? ये हमारे पास वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड अपॉन उस इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंटू 10⁻⁶। हम पार्ट्स पर मिलियन में ले रहे हैं, ये 10⁻⁶ ये कैंसिल हो जाए, इसलिए हम जो भी हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है उसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट है वो पीपीएम में दैट इज़ आ जाती है। सपोज़ मेरे पास कोई एनएमआर इंस्ट्रूमेंट 60 मेगाहर्ट्ज़ का है, वो सिग्नल मेरा 120 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे दे रहा है, तो मेरे पास केमिकल शिफ्ट पीपीएम में कितनी आ जाएगी वैल्यू? 120 अपॉन मेगाहर्ट्ज़, 60 मेगाहर्ट्ज़ से 60 इंटू 10⁻⁶। इंटू पीपीएम में निकालने के लिए मैंने 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करा है, तो मेरे पास ये डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट के 2 ppm आ गई। सिमिलर केस है, अगर मेरे पास एनएमआर इंस्ट्रूमेंट 100 मेगाहर्ट्ज़ का है, वो मुझे सिग्नल 200 हर्ट्ज़ पे देगा। उस केस में मेरी जो केमिकल शिफ्ट पीपीएम में कितनी आ जाएगी? 200 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 100 इंटू 10⁻⁶। ये मेरे पास अगेन 2 ppm आ गई। दैट मीन्स जब मैं केमिकल शिफ्ट पीपीएम में ले रही हूँ वो मेरी इंडिपेंडेंट हो जाती है, जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ, चाहे वो 60 का है, 100 का है, 400 का है। सिमिलरली अगर मुझे केमिकल शिफ्ट पीपीएम में 60 मेगाहर्ट्ज़ की
मालूम है, पता है, तो मैं 100 मेगाहर्ट्ज़ पे मेरे पास कितनी फ्रीक्वेंसी वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर सकती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, केमिकल शिफ्ट इन ppm इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंटू 10⁻⁶। अगर मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालनी है मैं वो निकाल सकती हूँ, और अगर मुझे केमिकल शिफ्ट ppm में निकालनी है मैं वो निकाल